मेरा मकसद ਹੁੰਦਾ कि अपने यंग बच्चे ना इंस्पायर होਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸਪਾਰ ਜਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਲੇਟ ਸ਼ੋ। ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਡੂ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ RF ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਜੈਂਟ ਸ਼ਿਵ ਚੰਦ ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਕੁਆਡਰਨ ਲੀਡਰ ਅਮੀਰ ਖਾਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ RF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। You don't have to get it from the teacher, you don't have to get it from your parents. You know, if they say you hear from the horse's mouth, the horse is here with me today. ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। I'm so honored, privileged to have another person from civil aviation. He's a pilot. ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਨੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 20, 30 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜੌਬਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ। those days it's called a white collar job. ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ white collar job was totally impossible to get into those kind of jobs. We were ending up working at the airport, the foundries वगैरह, underground and buses. And this is why I bring these intellectual guests कि ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। Please get inspired. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ please ask them to come and watch my program. The telephone number is 0208 571 4279. प्लीज़ कॉल करके असी लाइना खोलेंगे थोड़ी देर तक। मैं तुम्हें एडवाइस कर दूँगा। कॉल अस एंड टॉक एनी क्वेश्चन यू वांट टू नो फ्रॉम दीज एक्सपीरियंस पीपल। आज मेरे पास एक पायलट है मिस्टर डपीट मेहता। वेलकम यू ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। Thank you so much. Really Thank you. nice. It's my pleasure. बोलते ना आई वेलकम यू ऑन बोर्ड। मैं आपको ऑन बोर्ड वेलकम कर रहा हूँ। How are you? इस विमान में स्वागत है। I'm fine, thank you. मैं बहुत खुश हूँ, thank you. एक बात एवरी टाइम कोशिश करेंगे कि ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਘੱਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਨਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਰਨ ਇਟ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇ ਨੇ ਵਿਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਅਰਲਾਈਨਸ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਾਂਟ ਨੇਮ ਇਟ। ਬੜਾ ਸੋਲਿਡ ਜੌਬ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਜੌਬ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੌਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾयलट बने ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ बाल ਗੱਲ करेंगे। तो आई थिंक पता क्या करेंगे डपीट, ये बड़ा अनयूजुअल नाम आपका यार। हाँ वेल ये नाम मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात में भी आपको दीपीट जैसे बंदे नहीं मिलेंगे। नाम थोड़ा अलग है ना? हाँ हाँ इसका मतलब कुछ है कि हाँ इसका मतलब है दीप मतलब लाइट। तो लाइट इज द मीनिंग ऑफ द नेम। तो दिया जैसे दिया होता है Really? वैसा। हाँ अच्छा अभी लेट्स स्टार्ट। अभी अच्छा किया आपने बोल दिया। लेट्स स्टार्ट के पता कि मैं व्हाट आई वांट टू गेट आउट ऑफ यू कि ये जो आप ये जो बने पायलट, ये इंसान को कभी उसके दिमाग में आता है कब व्हेन दैट पेनी ड्रॉप्स इन योर माइंड कि मैं ये बनना चाहता हूँ। आपके जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मैं अहमदाबाद में बॉर्न हुआ हूँ। अच्छा अहमदाबाद में? हाँ अहमदाबाद में। और मेरे वेकेशंस फनी इनफ मुंबई में थे। तो मेरी आंटी रहती है वहाँ पे, मेरी फाई रहती है। तो मेरे समर वेकेशंस बॉम्बे में ही होते थे क्योंकि उनका घर एयरपोर्ट के बिलो के फ्लाइट पाथ के अंदर था। अच्छा अच्छा। तो अच्छा। मेरी इंस्पिरेशन ऐसे आई कि मैं हर समर सीज़न में मुझे बॉम्बे जाना होता है प्लेन देखने के लिए। और एक बालकनी एंगल से दूसरे बालकनी एंगल तक दौड़ के दूसरा ग्लिम्स मुझे देखने का बहुत पसंद था कि ये मशीन इतना बड़ा है, कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और इंडियन ओशन। What was your age then? कितनी एज थी? I think I would say maybe 6 or 7. So Really? I was really on the ball since the very young age. I just had a passion to fly. मुझे ऐसे था कि मुझे पायलट बनना ही है। और जैसे जिस तरीके से फिर मेरे में इंस्पिरेशन जागा। एक बार तो मुझे इतना प्लेन का था कि मैं पूरे दिन एयरक्राफ्ट के नेम और नंबर और एयरलाइन लिखते गया पूरे दिन। बड़े लोगों को हॉबी है। Lot of people like that actually. I'm one of them. Oh right, okay. I'm one of them. So पता है anything to do with civil aviation किसी भी तरह का तो मुझे उसमें ना बहुत पैशन है। अच्छा। मैं हर प्रोग्राम में भी कहता हूँ, नॉट बोस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने बड़ी साल हो गए अपनी एज नहीं बोलूँगा। मेरे के पास PPL था मेरे पास। अरे वाह। हाँ
तो सबसे छोटा था फैमिली के अंदर, थोड़ा बिगड़ा हुआ था। अच्छा। बिगड़ा नॉट इन अ बैड वे, लाड चार से प्यार से हो जाता है ना। तो मुझे कमर्शियल बनने का मैंने सोचा ही नहीं था, अरे मैंने मजे से किया था वो बस। तो अभी रिग्रेट करता हूँ। अरे पर आपके लिए कोई कम एज नहीं है, पायलट्स लेट एज में भी बन सकते हो, तो ऐसे नहीं है कि हमें यंग ही रहना है और हम पायलट बन सकते हैं। आप बहुत यंग एज से अगर इंस्पायर हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को अपने साथ रखो और उनको कंप्लीट करके दिखाओ, क्योंकि ये इस पे हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ क्योंकि जिदा डपीट ने किया ना, बिकॉज ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਐਲ ਲੈ ਲਿਆ ਐਂਡ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੈਰੀ ਔਨ, you can still do it. yeah, You're absolutely. never late for it. No, never late for it. Not late at all. Acha, so you were schooling in Mumbai that time. Well, I was studying in Ahmedabad, and I used to go for my vacations to Mumbai, and I just got an inspiration from there. And thankfully, my dad first time उन्होंने मुझे एक Indian Airlines के plane में बिठाया था। पहले मैं ट्रेन में जाता था, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर फिर पापा रेगुलरली कम्यूट करने लगे और मुझे उन्होंने एक बार एक A320 इंडियन एयरलाइंस के प्लेन में ले तुझे गए याद थे। है वो है? हाँ, सब वो इंजन का साउंड, फर्स्ट मोमेंट जो म्यूजिक प्लेन के अंदर बजता है, वो सब याद है मुझे। और फिर उस मोमेंट से मुझे इंस्पिरेशन हुआ कि ये मुझे करना ही है। Really? एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने एक पैशन होल्ड किया था। मैं जब लंदन आया था 2005 में, तब मैंने फर्स्ट थिंग मैंने डिस्कवर किया था कि हीथ्रो एयरपोर्ट इतना बड़ा है, इतने सारे प्लेन्स हैं, तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। मतलब दिस इज़ द प्लेस कि हम अपना ड्रीम कंप्लीट पूरी कर हो सकते सकती हैं। है। हाँ, तो मुंबई के अंदर आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया, यू हैड जस्ट हैड द पैशन दैट? या बिकॉज आई वाज स्टिल इन स्कूल। अच्छा, अच्छा। बहुत यंग एज थी। फिर मैंने यहाँ पे स्कूल में आया बॉम्बे से, सॉरी अहमदाबाद से, और यहाँ पे मैंने रिसर्च किया कि कैसे पायलट बनते हैं, क्योंकि पहले तो फैमिली में से कोई पायलट नहीं था, और पापा ने मुझे और पापा ने मम्मी ने सब ने ड्रीम्स के लिए बहुत सपोर्ट किया कि इफ दिस इज़ योर ड्रीम देन यू टेक द अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बोल दिया था पापा डैड हाँ, को कि मैंने हाँ कंप्लीटली बोल दिया था कि यही मुझे करना है। और पापा ने मम्मी ने दोनों ने बोला कि हाँ तुम करो, तुम डिटर्मिनेशन पैशन सब लिव करो और रिसर्च करके हमें बताओ कि कैसे कोर्स क्या होता है, क्योंकि हमें नहीं पता, तो इट्स ऑल अप टू यू। सो आई हैड टू स्टे डिटर्मिन, फाइंड आउट अबाउट द फ्लाइट स्कूल्स, गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू अंडरस्टैंड व्हाट अ रोल ऑफ अ पायलट इज़, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक चीज़ बहुत अलग है कि हाँ मुझे पायलट बनना है, पर रोल में क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट गल है। देखो प्लीज़, आई होप थोड़े बच्चे भी सुनते होंगे, अगर उन्होंने इस लाइन च नहीं भी जाना ना, अज तुसी कोई ही माइट से समथिंग थोड़े दिल ਨੂੰ ਛੂ ਜੇ ਕਿ यार आई वांट टू बी अ पायलट, या प्लीज़ ध्यान दे नाल प्रोग्राम सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग। आई विल ट्राई टू आस्क हिम क्वेश्चंस इन डिटेल ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ सवाल पूछना चाहते हो। टाइम बड़ा छोटा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ स्टार्ट करी जाने हैं। तो अभी आके कैसे आपने रिसर्च किया ये बात, हाउ डिड यू रिसर्च दैट? तो मैंने पहले स्कूल में आया था मैं, और मुझे यहाँ पे यूके में फ़र्स्ट इंटरनेट यूज़ करना मैं सीखा था। तो फर्स्ट थिंग मैंने टाइप किया सर्च में कि इज़ हाउ टू बिकम अ पायलट। Really? हाँ, तो फिर मैंने अंडरस्टैंड किया कि फ्लाइंग लेसन्स जैसी कुछ चीज़ें होती है जो अगर आपको रियली एविएशन करियर में इंटरेस्ट है तो आप ट्रायल लेसन ले सकते हो। तो मैं, पापा और मम्मी बस में रात को ब्लैकपुल गए थे एक 15 मिनट के फ्लाइंग लेसन के लिए। सुबह सर्किट हमने किया था। Oh my God. सो आई रियली एंजॉयड दैट एंड दैट। हु किसने फ्लाई किया था तो वो? मैं लेफ्ट हैंड सीट में था, इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन, एंड द इंस्ट्रक्टर वाज ऑन द राइट हैंड सीट। अच्छा, इंस्ट्रक्टर गया था हाँ, साथ में? हाँ, हाँ, साथ में 4 सीटर छोटा सा मैंने प्लेन किया होता वो है। इधर, I've done that. हाँ, आपने बोला था। I've done that. वेरी नाइस, हाँ। वेरी नाइस। सो या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। एंड फिर मैंने सोचा कि यू नो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारे स्किल्स चाहिए। तो मैंने फिर सोचा कि हाँ आई एम प्रिपेयर टू लर्न टूवर्ड्स दी स्किल्स एंड डेवलप माई सेल्फ। और फिर मैंने कंटिन्यू किया कि मुझे अच्छे स्कूल्स ढूंढने हैं, मुझे स्कूल में रिजल्ट्स लाने हैं अच्छे, क्योंकि पायलट के लिए स्पेसिफिक GCSEs या A levels भी होते सम एयरलाइन स्कीम्स कौन के से लिए। सब्जेक्ट में चाहिए? सो आइडियली कंपलसरी कुछ नहीं है, पर फ्लाइट डेक एक बहुत टेक्निकल चीज़ भी है और बहुत ह्यूमन फैक्टर्स की भी चीज़ है। तो अगर आप मैथ्स और फिजिक्स में अच्छा करते हो स्कूल में तो दैट इज़ अ गुड स्टार्ट। Good start, हाँ, हाँ। and if you do A levels in maths and physics, that's even a better thing to do. And then flying is all about technical abilities, so you need to have good situational awareness अच्छा होना चाहिए, आपका workload management skills अच्छा होना चाहिए, फिर human factors अच्छा होना चाहिए, क्योंकि as pilots हम एवरी डे जब जॉब पे जाते हैं तब डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं, तो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ काम करते हैं, तो हमें इंडिविजुअल लोगों के साथ कैसे काम करें वो सीखना पड़ता है।
प्रेशर बहुत होता है, समटाइम्स थिंग्स गो रॉन्ग, प्लेन इज़ अ बिग मशीन, तो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, हाउ टू स्टे काम अंडर प्रेशर, वो सब स्कूल में नहीं सिखाते, बट दीज आर द स्किल्स दैट द रोल रिक्वायर्स। और मैं तो ये आपने यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी वो स्टार्ट किया है, हाँ तो कितने साल का कोर्स था तो पायलट में स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जैसा नहीं होता। ये? आपने यूनिवर्सिटी पिक किया या कॉलेज पिक किया जो वो लाइन पे लेके जा रहे हैं? हाँ ओके। तो मैं गया था डिफरेंट स्कूल से, मैंने कंप्लीट किया था। पायलट के लिए आपको दो तरीके के रास्ते होते हैं, एक होता है जो मॉड्यूलर ट्रेनिंग होता है और दूसरा होता है जो इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग होता है। मॉड्यूलर ट्रेनिंग में ऐसे होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने लाइसेंसेज और रेटिंग्स फ्रॉम द स्टार्ट कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप जॉब भी कर सकते हो। तो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि मैं पूरा 110,000 पाउंड्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स का कॉस्ट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पर मैं मॉड्यूलर कर सकता हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे PPL होता है उसके में भी 8,000 पाउंड होते हैं, या फिर नाइट रेटिंग होता है जिसके 1,000 पाउंड होते हैं, तो आप जॉब भी कर सकते हो और रेटिंग्स भी बिल्ड कर सकते हो। रेटिंग भी बिल्ड कर सकते हो। और इंटीग्रेटेड में ऐसा होता है कि आप एक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम देते हो, or from zero to you pretty much go towards a frozen ATPL, which is like you complete everything in one go, where आपकी theory पहले शुरू होती है, आपको 14 theoretical एग्जाम्स पास करने होते हैं पायलट की जॉब के लिए, फिर आपको आपका बेसिक फ्लाइंग कंप्लीट करना होता है जो 2 सीटर प्लेन में आपको इंस्ट्रक्टर सिखाता है कि जनरल हैंडलिंग कैसे होता है, फिजिक्स और डायनामिक्स प्लेन के कैसे होते हैं, नेविगेशन कैसे करते हैं, वो सब सिखाते हैं। और फिर उसके बाद आप एडवांस ट्रेनिंग में जाते हो जहाँ पे आपको छोटा प्लेन होता है स्टिल, पर 2 इंजन्स देते हैं, तो आपको लर्न करना होता है कि आप एक इंजन फेल हो जाए तो कैसे आप कोप करोगे। उसके बाद Do they actually switch off the engine? Yeah, they actually turn off Oh the my engine. God, That's really? part of the exam. And then the interesting thing is there is something called instrument rating, which is sort of towards the end of your training, where आपको demonstrate करना है कि आप take off से landing तक आपको ये screens cover कर देते हैं, तो आपको you can't see anything, so you have to fly just on flight instruments in the Blindfolded cockpit. kind of thing. Exactly. Yeah, isn't similar that to very that. difficult? It is very challenging. लेकिन एक चीज मैं बड़ी सोचता हूँ हाँ। कि जब भी दिन पे भी होगा तो यू 35,000 40,000 फीट above होते हो, Yeah. तो उधर तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ। All you see the layer of clouds underneath. तो जमीन तो दिखाई नहीं देती है, maybe you can see to the distance. Yeah. तो जब भी डार्क होता है तो अंधेरा, तो आपको don't you feel suffocated कि जहाज कहाँ पे जा रहा है? ऐसे होता है कि कहाँ जा रहा है, कि किस एरिया पर से जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे चैलेंजिंग टेरेन्स है, जैसे माउंटेन्स बड़े बड़े हैं, तो पायलट्स हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ नाइट फ्लाइट है, कुछ दिख नहीं रहा, बिलो पे माउंटेन्स है, तो अगर कुछ होए कि अगर इंजन प्रॉब्लम हो या पैसेंजर प्रॉब्लम हो या कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो, एज अ पायलट हाउ आर यू गोइंग टू थिंक ऑन द स्पॉट to say what is your plan? Because लेकिन I can see जो ट्रेनिंग है बहुत हाई लेवल पे होती होगी ना, because there is a high risk factor as yeah, well. absolutely. Training is very intense. It is absolutely one of the hardest trainings which is out there, because you have to stay determined. Not a lot of things will make sense. Initially आपको ऐसे लगेगा कि मैं सब ये क्यों सीख रहा हूँ, ये कैसे make sense कर रहा है, पर आप जब end tunnel पे जाते हो तब आपको realize होता है कि आपको कितनी सारी चीज़ें और skills चाहिए इस Skill role को चाहिए ना। complete करने के लिए। मैं सारे ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ from RAF I don't know how to put up the words, it's easy way to get into and take a training free of charge. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਪੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 100% ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਇਲਟ। ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਜੌਬ, ਵੈਰੀ ਟਫ ਥਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं तेरी गल करेंगे कितना कॉस्ट होता है कि there's a ways that a lot of people don't want to go into the army and learn to fly. Some people want to do privately. अगर बाप पास थोड़े बहुते पैसे है and he's quite happy to spend on you. तो मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ गान को, लेकिन we go back to your conversation. Oh yeah. रफली कितना खर्चा होता है जो आपने किया था, क्या how much the तो cost? मैंने मॉड्यूलर ट्रेनिंग किया था, और मॉड्यूलर ट्रेनिंग मुझे पड़ा था 60,000 पाउंड्स में। 60,000 pounds. पर ऐसे भी नहीं है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत अनअफोर्डेबल है, पर अगर आप सेविंग्स करके आपका पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है। और मैं बहुत लकी था कि मैंने सब जगह, जैसे मैंने बोला था कि मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहा था जो 12 आवर्स की स्कॉलरशिप भी दे रहा था। तो आई वॉज वेरी लकी टू गेट अ फ्लाइंग स्कॉलरशिप, जहाँ मेरी 12 आवर्स की ट्रेनिंग उन्होंने फंड की थी अप टू माई फर्स्ट सोलो, which is still a value of 2-3,000 pounds. So Basically a scholarship you go on the website to find कौन दे सकता है। yeah, exactly. Very interesting. I hope ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, I'm trying to put you into the ladder
अगर तुसी पायलट बनना चाहते besides joining the British forces that can be done. Yeah. हाँ जी, अच्छा. और स्कॉलरशिप हेल्प सपोर्ट है अगर आप बेसिकली फॉर एग्जांपल वुमेन इन एविएशन इज़ आल्सो अ बिग थिंग कि बहुत सारे वुमेन एविएशन में नहीं जा रहे क्योंकि उनको लगता है कि ये मेन का इंडस्ट्री है, तो हम वो बैरियर भी ब्रेक कर रहे थे. देयर लॉट्स ऑफ सपोर्ट आउट फॉर all ages to become a pilot. You don't necessarily have to be like an autocratic thing that this is the type of a job, this is the type of a person. अगर आपका dream है, अगर आपको complete करना है, तो you can do it. You don't have to be anybody. You can just be yourself and तो complete your दूसरी dream. कौन सी पायलट ट्रेनिंग होती है? This is for about 60,000 pounds approximately. And the other one? And the other one is integrated training. Integrated. Which is a full-time training. So that is approximately 110,000 pounds. 110,000 pounds. Yes, but there are also finance schemes out there, so it lessens the burden, and they usually go through a bank when you pass your aptitude test. अगर आप pass करते हो, or bank will provide the support against a certain condition or everything to fund through your training. अच्छा, जैसे आप mortgage लेते हो, गाड़ी buy करते हो, they can fund you towards becoming a professional. Exactly. They provide you the flight training cost, and then once you're employed as a pilot or once you complete your training, आप repay उनको कर सकते हो installments की तरह. तो So आप before a bank can agree to fund you, उसकी requirement क्या है? तो उसके रिक्वायरमेंट सर्टन फाइनेंशियल सिचुएशंस पे डिपेंड होते हैं. मोस्ट लाइकली बच्चे क्या करते हैं कि दे प्रॉब्ली रीमॉर्गेज द हाउस, कि पेरेंट्स प्रॉब्ली हेल्प देम टू से दैट वी कैन प्रॉब्ली गेट अ लोन अगेंस्ट एक्स अमाउंट ऑफ मनी टुवर्ड्स द अगेंस्ट द मॉर्गेज. तो ये एक रास्ता है. और बहुत सी बैंक तो ऐसी नहीं है, पर यूके में 1 or 2 बैंक्स है जो ऐसे प्रोवाइड करती है. और अगर आप फ़्लाइट स्कूल जाओगे, जैसे बहुत बड़ी बड़ी फ़्लाइट स्कूल है, अगर आप वहाँ जाओगे, मैं सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे ओपन डे होते हैं, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली सिखाते हैं कि ये रोल है, यहाँ से फाइनेंस लेना है, ये हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट से, इतने एयरक्राफ्ट्स है, इतने स्टूडेंट्स है, ये हमारा रिकॉर्ड है. तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि जिसको भी पायलट बनना है वो ऐसे स्कूल्स में जाए, विजिट करे, ओपन डेज देखे, पेरेंट्स को ले जाए, तो उनको भी पता चले कि बंदा किस फील्ड में जा रहा है और क्या रिक्वायर्ड है. पर टू फाइंड वो सारा कुछ लबने से पहले तो मैं लेके आता हूँ लोगों को सीधा स्टूडेंट के ऊपर. आई एम रियली ट्राइंग टू मेक इट लॉट इजियर फॉर द पीपल सिटी. आप कहाँ भी कितने भी तुसी बैठे अपने घर दे फ्रंट रूम दे विच वॉच कर रहे हो, आई एम ब्रिंगिंग दिस प्रोग्राम्स एट होम. देन माई सेल्फ एंड डिप्टी शोइंग यू डायरेक्शंस के तुसी केड़े रास्ते जाओ, ट्राइंग टू गिव यू अ गाइडेंस के इजी वे तुसी किद्दां कर सकते हो. तो आप पायलट कभी बने थे? हाउ लॉन्ग सिंस यू बीन अ पायलट? सो आई हैव बीन फ्लाइंग कमर्शियली 5 साल से, और मुझे 2.5 years ट्रेनिंग में लगी. और उसके पहले मैं बहुत सारी वॉलंटरी चीज़ें करता था, ऑर्गेनाइजेशंस में पार्ट लेता था. तो उस तरीके से मैंने स्किल्स डेवलप की है. और ये इंडस्ट्री ऐसा है कि अगर आपके पास पैशन है तो आपको कोई नहीं रोक सकता. तो ये मैं डेफिनेटली क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपका ड्रीम है कि मुझे पायलट बनना है या मुझे कुछ भी और कुछ बनना है, तो ये इंडस्ट्री बहुत सपोर्टिव है इन टर्म्स ऑफ आपको राइट गाइडेंस देने के लिए, या पायलट्स का बात कर सकते हो, आप उनसे मिल सकते हो, आप बोल सकते हो कि क्या होता है. तो बहुत आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इस इंडस्ट्री में. ये मैं आपका नाम डिप्टी वजह डिपीट है. ये इट्स सो फैबुलस जॉब, क्योंकि जब भी हम फ्लाई करते हैं पायलट का एटीट्यूड देखते हैं, कितने नखरे से आते हैं वो, कितने नखरे से बाहर जाते हैं. सम पीपल इवन गॉट अ स्टिफ नोज, तो किसी से बात भी नहीं करते हैं. एंड पहले मुझे बोलो, बिकॉज वी माइट हैव सम कॉल्स कमिंग इन एज वेल. ऐसी लाइना खोल देती है बाय द वे, इफ यू वांट टू कॉल इन 0208571479. किसी भी तरह का सवाल प्लीज तुसी पूछ सकते हो, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. एटलीस्ट तुसी गाइड लवो, अपने बच्चे ने लवो तो बच्चे खुद कॉल करन. और अगर किसी बंदे ने अपना नाम नहीं दसना, वो थोड़ी मर्जी, मेरा फर्ज बनता थोड़ा नाम पूछना. बट इफ यू वांट टू डोंट गिव योर नेम, आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट, नो प्रॉब्लम. तो अभी इसका जो ना क्या कह रहा था मैं, इधर मैं कंफ्यूज का, मुझे इतना पैशन है ना इसके साथ. एक इंसान जब भी फ्लाइट के अंदर जाता है, ये बिकम पायलट बनते हो, तो यार यू द क्लाउड 7 डिफरेंट लोगों पे रिस्पेक्ट हो जाती है. क्योंकि दिस इज समथिंग. मुझे एक कॉल ले लेते हैं, फिर बात करेंगे. हेलो जी, सत श्री अकाल. हेलो हेलो जी, कौन बोलते हो जी, कितों बोलते हो? डॉक्टर मसारू फ्रॉम लीड्स. हाँ जी, की कहना चाहते हो जी? हाँ जी, हाँ जी, की कहना चाहते हो तुसी? I just want to know how the engine weights are supported by the structure of the aeroplane.
Did you get it? No, say again, नहीं please. पाजी थोड़ी समझ नहीं आई. Can you ask me again? थोड़ा loud बोलो. You know the engines, they're so heavy, हाँ. they obviously attached to the aeroplane. How are they such a weight is supported by the structure of the aeroplane? Very good question. Very nice. समझ आई ना आपको? हाँ, हाँ. एक क्या होता है देखिए हम जैसे अपने फोन के इन्होंने तो हम देखते हैं इतना बड़ा प्लेन है उसके अंदर इतना हैवी इंजन वो कैसे उसको करती है विंग के ऊपर. अच्छा, तो एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करता है? बेसिकली एयरक्राफ्ट में बहुत 2 साइड्स में विंग्स होते हैं. तो जब वो रनवे पे एक्सेलरेट करता है वो एयर पार्टिकल्स विंग के ऊपर से भी जाते हैं और नीचे से भी जाते हैं और वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है और उस वजह से एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलती है. और इंजन्स का ये है कि इंजन्स प्लेन को फॉरवर्ड ले जाते हैं, थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बहुत सारा एयर सक करते हैं इंजन में और उसकी वजह से न्यूटन का लॉ है, फॉर एग्जांपल एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो द फोर्स इट टेक्स इन, इट्स द फोर्स इट गिव्स आउट फ्रॉम द बैक ऑफ द प्लेन एंड उस वजह से एयरक्राफ्ट को लिफ्ट भी मिल रही है और थ्रस्ट भी मिल रहा है. तो लेकिन इसमें जो विंग के साथ माउंटेन किया होगा उसको मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग चीज. yeah, the aircraft are Structure very को ना? exactly. पर engineers का ये challenge है कि plane जितना light हो उतना economically और commercially viable होता है. तो you have to balance between कि you have to make a solid engine but also make it commercially viable to make sure it's as light as possible in order for the aircraft to produce lift. So it's all complexity of balance between lift and thrust which keeps the whole plane flying. Okay, Paji, I hope you're happy with that. I think it's gone. Thank you. ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ really appreciate that. And ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ because I got similar question to ask him relevant to your question. तो इसमें पता जो जेट इंजन होते हैं there is a certain space you cannot go in the front of the engine because that will suck you in. Yeah, absolutely. है ना? ये हो चुका है ना ऐसे? ये बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स और इंजीनियर्स हैव बीन सक्ड इनटू द इंजन. तो ऐसे होता है कि जब आपने मे भी नोटिस किया होगा कि एयरक्राफ्ट में एक रेड फ्लैशिंग बीकन होती है. जब पुशबैक होता है या एयरक्राफ्ट डेफिनेटली स्टार्ट होता है तब ऐसे रेड फ्लैशिंग लाइट होती है. तो पायलट्स हम कॉकपिट में से उस लाइट को टर्न करते हैं और उस लाइट से ग्राउंड स्टाफ को इंडिकेशन होता है कि अभी इंजन्स चालू करने वाले हैं या एक इंजन या दूसरा इंजन रनिंग है तो एयरक्राफ्ट के नज़दीक ना आए. सो ओनली व्हेन वी टर्न द बीकन लाइट, उसको बीकन लाइट बोलते हैं, देन ओनली पीपल कैन अप्रोच द एयरक्राफ्ट सेफली. So this is sort of the industry is learning कि how to prevent accidents, incidents. But it is a very valid thing कि ये हो चुका है पहले. I think we got it. Hello जी, सत श्री अकाल. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Hello. The question I asked basically was the engine weight is so much. When the aeroplane is static, I is standing on the runway, how is that weight supported by the structure of the aeroplane? So aircraft is supported with strong mechanical stuff also. So not only the engine is just a dead weight, engine is actually producing the thrust. So it is actually doing the job itself to keep the machine flying and sustain itself. Okay, all right, thank you. Thank you, sir. Thank you. बहुत अच्छा लगता है. These people are interested to know. Yeah, absolutely. Paji, are you still there? You're gone. हाँ जी, I think it's gone. Time बड़ी fast जा रहा है. हाँ. तो यार एक बड़ी बात है मेरे इतने सवाल है ना because I'm so fascinated with आप कौन से एयरप्लेन फ्लाई करते हैं? मैं फ्लाई करता हूँ Airbus A320. A320. Yes. हम ब्रेक होने वाली है बाद में दिखाएंगे तो बात करेंगे. यार इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतना बड़ा मॉन्स्टर है. माइंड नहीं करना कोई अभी कोई पायलट आप छोटे साइज के हो. हाउ डू यू हैंडल दैट? ऐसे नहीं कि आपने लिफ्ट करना है पर ऐसे जैसे मैं अभी गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे बोले मैं कॉल ले लेता हूँ फटाफट. हेलो जी, सत श्री अकाल. हेलो सत श्री अकाल जी. हाँ जी भाजी, कौन बोल रहे हो जी? राज बोल रहे हैं जी. हाँ जी भाजी, स्वागत करते हैं. हाँ जी की पूछना चाहते हो? मेरी बेटी ने इटली तो ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਲਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਸਤੇ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ. कीप वॉचिंग. ਅਸੀਂ कोशिश करेंगे ब्रेक तो बाद भी गल करेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? Could you say that again? उसके बच्ची है, उसने इटली यूरोप से मुझे लगता है ट्रेनिंग किया. अच्छा. तो अभी फाइनेंशियल सिचुएशन से वो स्टॉप हो गया है. अच्छा. तो अभी क्या कर सकते हैं? तो अभी डेफिनेटली फ्लाइंग एक बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है और मैं टोटली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आप
पूरा टाइम 100% नहीं कंप्लीट कर सकते हो, पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर स्टिल आपके फाइनेंस रीबिल्ड कर रहे हो टुवर्ड्स ए फ्लाइंग ट्रेनिंग, आप कोई और एविएशन में जॉब कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल असिस्टेंट, और अगर आप कोई भी और स्टोर में भी जॉब करो तो वो भी चलेगा, क्योंकि आप बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर रहे हो इवन इफ़ इट्स नॉट डायरेक्टली टू फ्लाइंग। और जब आपके फाइनेंसेस स्टडी पोजीशन में हो जाए देन यू कैन कंटिन्यू योर ट्रेनिंग। और मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्लाइंग एक्सपेंसिव नहीं हो सकता। एक और चीज़ है जो ग्लाइडिंग कहते हैं, उसमें इंजन नहीं होता, और आप मे बी 20 to 30 pounds और 50 pounds पर आवर में। माफी चाहूँगा, सॉरी, विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। Okay. प्लीज़ देखते रहो, बड़ा अच्छा लगता है। अपने किसी ने फ़ोन किया अपनी बेटी ਲਈ ਅਸੀਂ ब्रेक तो बाद भी कन्वर्सेशन करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग हैगा। प्लीज़ जागरण मैं करदा अपने बच्चों ਨੂੰ हर थोड़ी किसी न किसी तरीके ਨਾਲ मदद करने की कोशिश करदा है। वी विल फाइंड ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ब्रेक तो बाद फिर गल करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन डू इट। मैं एक्सपीरियंस बंदे ने अपने मिस्टर मेहता उन्होंने ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। No, but totally, मैं तो thoroughly enjoy करता। Honestly, बचपन आ गया। I wish the clocks can turn back, मैं वापस शुरू कर सका। You know, ਅਸੀਂ बेशक कहने हैं कि ना सब दुनिया 9 to 5, मैं I'm not putting you down, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 9 to 5 ਕਰਦੇ ਆ। It's a rat race as we say in English ਦੇ ਵਿੱਚ। In England ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, Monday to Friday ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। There's no discipline, there's no change in life, there's no excitement there। क्यों नहीं बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਕਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਿਲਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇयर लॉट ऑफ वेज यू कैन डू इट। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 1-to-1 ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਫ 에ਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਆਵਰ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ अकाल चैनल के थ्रू ब्रिंग इट टू योर डोर स्टेप। तो अभी इन्होंने पूछा, एक तो था कि स्कॉलरशिप मिलती है ना, बैंक का लोन ले सकते हो। हाँ। तो स्कॉलरशिप के पहले बोलो। तो स्कॉलरशिप में ये है कि 12 आवर्स या समटाइम्स आपका PPL तक फंड करते हैं थोड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, एयर लीग या गैपन जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप गूगल में टाइप करोगे तो आपको मिलेगा। और वो स्कीम एक साल में 1 साल होती है, और उसके लिए आपको वंस आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे फिर आपका थोड़ा इंटरव्यू होगा, और अगर आप सक्सेसफुल हो, जिसमें सक्सेसफुल होने के लिए वो सिर्फ आपका पैशन देखना चाहते हैं कि आपको रियली में ये इंडस्ट्री में जाना मेरे है। को तो बहुत है। हाँ, तो आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको यही प्रूव करना है, और अगर आप में पैशन है तो मैं कोई डाउट नहीं ले सकता कि आपको नहीं मिलेगी। तो आप प्लीज़ अप्लाई करो। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे डर जाते हैं कि यार स्कॉलरशिप तो मुझे मिलने ही नहीं वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपीट करेंगे। तो एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग गल है, मैं हमेशा कहना ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਹੈਡ ਬੀ ਇਨ ਇਟ ਟੂ ਵਿਨ ਇਟ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕਟ, ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਵਿਨ yeah, ਇਟ? you have to try, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ absolutely। ਟਰਾਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ, ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਗੈਂਬਲ, ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਟਰਾਈ। ਅਗਰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਬ ਹੈਂਡ ਬੈਗੇਜ ਪਕੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਕਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਨੈਵਰ ਲੁੱਕ ਐਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਦਤ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ एयरक्राफ्ट बड़ी स्मूथ लैंडिंग होंगी है ना, अगर मैं पायलट दिखाई देवे, मैं कॉम्प्लीमेंट देना कि यू डन अ ब्यूटीफुल लैंडिंग, तो वो ऐसे हैरान हो जाता है कि हाँ। यार मुझे कभी किसी ने नहीं बोला। हाँ, क्योंकि हमें लोग देखते नहीं है, देखते नहीं ना, वही मैं कह रहा हूँ। बड़ा शान है जॉब दे विच, बड़ी शौहरत है, बड़ी इज्जत है। प्लीज़
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇयर इज नो ਹਾਰਮ ਇਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆਰਮੀ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ कैन नॉट जॉइन अ कमर्शियल एयरलाइन, ਉਹਦੇ ਤੇ भी रिस्ट्रिक्शन होती है, यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। उनका अगर आप एयरफोर्स में से फॉर एग्जांपल सिविलियन ट्रेनिंग में आते हो हाँ. तो देयर आर सम pathways which you can take. There are तो pathways, हाँ. so you will have to do a little bit of conversion training to become a civilian pilot. But अगर आप एयरफोर्स में जाते हो और आपको सिविल में आना है तो भी ये पॉसिबल है। दोनों साइड के दोनों do it. side से possible। अच्छा, अभी मुझे एक बात बोलो, क्योंकि हमारे कितने फ्रेंड होते हैं तो डिस्कशन होती है, आई नाउ, Okay। पर अपने लोगों के लिए जो व्यूअर्स है, हाँ। जो मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, बड़ी आर्गुमेंट होती है बात की। अभी बोलते हैं कि कोई लोग बेचारे सीधे मेरे जैसे तुमातुर होते हैं, तुमातुर सीधे साधा बंदा, तो बोलते हैं पायलट में तो कैप्टन में कोई फर्क नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस। बिग डिफरेंस। हाँ, कैन यू एक्सप्लेन मी दैट? सो ऐसे जैसे ये होता है कि पायलट कॉकपिट में दो लोग बैठते हैं, लेफ्ट साइड में कैप्टन बैठता है और राइट साइड में फर्स्ट ऑफिसर बैठता है। उस दैट इज द टाइटल ऑफ द सेकंड पायलट। दैट्स अ पायलट। हाँ, they are both pilots. Their responsibilities in terms of actually flying the plane are same. So for example, मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो मेरे कॉलिग मुझे मिलते हैं और वो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ अगर वो कैप्टन है तो बोलेंगे कि लंदन से पेरिस जा रहे हैं, पेरिस से हीथ्रो वापस आना है, आपको कौन सी साइड फ्लाई करना है। तो इट्स अ कैजुअल डिस्कशन कि हाँ आई विल टेक इट। अच्छा, कैप्टन वो आपको ऑफर करता है। हाँ एग्जैक्टली। कितनी रिस्पेक्टफुल बात होती है, यू नो। हाँ। तो आपको ऑफर देता है कि तू इधर से फ्लाई कर ला, वापस मैं ले आऊंगा, हाँ। और अदर वे। एग्जैक्टली, एनीवे जो आपको प्रेफरेंस सूट हो डिपेंडिंग ऑन अच्छा, वेदर वो कंडीशंस। कैप्टन पायलट हो बिकॉज उसने कमांड आपको दे दिया, हाँ। which basically means you are in command of the airplane Exactly, now. you are second in command of the Second plane. in command. और ये होता है कि जब मैं फ्लाई करता हूँ तो आई एम फोकसिंग ऑन फ्लाइंग द प्लेन एंड नेविगेशन, और जब कैप्टन जो नॉन फ्लाइंग का पार्ट करता है वो कम्युनिकेशंस करता है और मेक श्योर करता है कि सब एयरक्राफ्ट में मॉनिटर हो रहा है या नहीं है। और जब अगर इमरजेंसी आती है तो दोनों लोग एक साथ टुगेदर एज अ टीम काम करके डिसीजन पे आते हैं, पर कैप्टन हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन। वेरी गुड। मैं पहले कॉल लेता हूँ, बात अच्छा, करें। हाँ। हेलो जी, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ भाजी खालसा। भाजी कौन बोल रहे हो, कितों बोल रहे हो? ਮੈਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ। भाजी बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। भाजी की कहना चाहते हो? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇ ਆ, बिल्कुल, ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਆਨਰ ਟੂ ਆवर ਕਮਿਊਨਿਟੀ एब्सोल्युटली। ਐਂਡ ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? बिल्कुल भाजी, खुल के करो, सुन रहे नहीं। ਹਾਂਜੀ, हाँ जी, करो, बोलो। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਯੂ ਯੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇ ਆ, and you're encouraging more youngsters to become pilots, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। And but I just like to tell you, you know, I designed aircraft systems for 23 years. ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। And what I want to say, it's very sad now that I used to fly around the world, right? क्या बात है, क्या बात। And I used to sit with the pilot and the co-pilot अच्छा अच्छा। in the cockpit हाँ, during my flight, and I used to discuss with them the engine performance, because I worked on Rolls-Royce for engines. ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ but it's very sad now due to 9/11 they don't allow anybody in the cockpit. Exactly, ਹਾਂਜੀ, that's right। है ना? But it is मैं ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ late show, but I'm very glad ਕਿ you know ਸਾਡਾ young ਮੁੰਡਾ is flying। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਜਿਨ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੈਲੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, he flies around the world, the virgin Atlantic। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਝੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਟ ਹੀਅਰ ਹਿਮ ਐਟ ਆਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਅੱਛਾ, ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਯੂ نو ਫਲਾਈਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਰਜਿਨ ਐਟਲਾਂਟਿਕ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਟੈਕਟ ਯੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ।
हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मैं जिदा क्या भाजी, नाइस ऑफ यू टू कॉल अस, बड़ा अच्छा लग्या, बड़ा प्राउड फील करते हैं कि तुसी भी इंटरस्ट लेता कामां दे विच, तुसी फ्लाई कीता। अपना नंबर छੱਡ दो तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू। हाँ तो हम बात कर रहे थे स्पॉन्सरशिप की और वो कैसे वर्कआउट होती है सारा। हाँ तो आप अप्लाई कर सकते हो उस ऐसे वेबसाइट पे जाके, वंस अ ईयर होता है और पूरा ट्रेनिंग तो कोई फंड अभी नहीं कर रहा, पर इवन इफ इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग आपके सीवी पे बहुत अच्छा लगता है, आपने एक अचीवमेंट किया है बिफोर गेटिंग द जॉब कि ये मैंने करके दिखाया। क्योंकि जब आप आपकी पायलट के जॉब के लिए जाते हो फर्स्ट टाइम, तो एयरलाइन आप पे देख रही है कि क्या मैं ये बंदे को 90 to 100 मिलियन डॉलर जेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ या नहीं सकता हूँ। बिल्कुल। तो अगर आपने ऑलरेडी प्रूव किया है कि हाँ देखो मैं बाहर गया था, मैंने स्कॉलरशिप लिया था, मैंने प्रूव किया कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रस्ट किया है उनके पैसों से मेरी ट्रेनिंग करने के लिए, तो दैट गोज अ लॉन्ग वे ऑन योर सीवी। सो आई वुड डेफिनेटली एनकरेज नेवर स्टॉप अप्लाइंग फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, दैट्स द की आई थिंग। थिंक देयर इज अ कॉल। हेलो जी, हेलो सत श्री अकाल। ओके मैं लगता कि कॉल ड्रॉप हो गया, तो मैं लगता सी कि लाइट आ गई। मैं सुखदेव चाहूँगा कि प्लीज़ कैन यू शो मी अ पिक्चर ऑफ द कॉकपिट, आई बी रियली हैप्पी विद दैट। थोड़ी बहुत ही बात करेंगे। या श्योर। हाँ हाँ तो अच्छा, अभी एक तो बात है कि ना स्कॉलरशिप की है तो एक बैंक लोन हो सकता है ना, देन यू हैव टू कीप योर हाउस, रीमॉर्गेज करना पड़ेगा। हाँ यूजुअली आपकी लोन अगेंस्ट द मॉर्गेज मिलती है फॉर द बिग ट्रेनिंग कॉस्ट, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जॉब भी कर सकते हो और आपके रेटिंग्स फंड भी कर सकते हो। सो बहुत सारे तरीके, आप नंबर से मत घबराए कि 100,000 पाउंड ट्रेनिंग है या 70,000 पाउंड ट्रेनिंग है, क्योंकि आप प्लान करके उसको अचीव कर सकते हो। तो आपका ड्रीम उसके लिए मत स्टॉप करो, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहता हूँ, क्योंकि यंग बच्चे ऐसे सोचते हैं कि कैसे कर पाएंगे, पर बहुत सारे रास्ते हैं। हो सकता है ना, हाँ, बहुत सारे। absolutely। पर जी तुसी जेने रिंग के दसी, मैं तुहानू वापस कहना कि देयर आर लॉट ऑफ वेज, तुसी प्लीज़ ए हिम्मत ना छड्डियो। बेशक फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, जो हालात कंट्री दे विच सारी दुनिया च है, देयर इज़ अ वे। अगर बच्चे दी जिंदगी बन सकती है, अगर बाप नू भुखा रह के बच्चा पढ़ा सकते हो तो यू हैव टू डू दैट, बिकॉज हर बाप का फर्ज बनता है। मुझे लगता है कॉल है, हम ले लेते हैं। हेलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, मैं स्लो तो बोल रहा। हाँ जी। हाँ जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मेहता साहब ਨੂੰ बड़ा ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ करना चाहना कि इन्होंने बड़ी प्रिविलेज मिली है टू बिकम ए यंग पायलट एंड help from the parents, हाँ जी। and they done so much search to become a pilot. Absolutely. बिल्कुल बड़ी इस चीज़ की खुशी है कि इन्होंने इन्ना हार्ड वर्क अपने एम्बिशन ਨੂੰ पूरा करने ਲਈ खुद किया है। बिल्कुल भाजी, देखो 60-70,000 पाउंड खर्चा किया इन्होंने। हाँ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ यूनिक शो। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा तुसी कॉल किया। आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प द कम्युनिटी, अपनी यंगस्टर ਨੂੰ वेक अप करदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो घर बैठे ਨੂੰ मदद दे रहे हैं, लोगों ਨੂੰ रस्ता दिखा रहे हैं, इदों बेटर कित्थों मिल सकदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ क्योंकि मैं खुद मेरा खुद अपना एम्बिशन सीगा मतलब अपनी यंग एज ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन जिस तरह इन्होंने आज क्लैरीफाई किया कि ਜਿਹੜੀ मैथ्स है बहुत इंपॉर्टेंट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ आई वाज वेरी वीक इन मैथ्स। मैं भी ऐसे करके रह गया। चलो भाजी, इट्स नाइस टॉकिंग टू। मैं बहुत अच्छा लगा तुसी वॉच कर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी इनकरेजिंग। हमेशा अपनी फीडबैक दिया करो कि उदा जैसे प्रोग्राम लेके ताड़ी संगत का कुछ फायदा हो सके। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे भरा, थैंक यू। तो अच्छा, अभी एक चीज़ मैं बार बार कहांगा, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸਲਾਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਦ ਮਨੀ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਟੁਗੇਦਰ ਬਿਕॉज यू Yeah. कैन नॉट बैलेंस दैट Exactly. है I agree. वो पैसा अपनी जगह पे वो प्रोफेशन हाँ, अपनी जगह पे Exactly. अगर बच्चा ट्रेन होके पायलट कैप्टन बन गया प्लेन ਦਾ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਮ ਨॉट ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯੂ نو ਸਾਰਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਉਹਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹੋਲ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਨ ਦ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੋਣ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਹੋਵੇ कोई भी होवे ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿबिलिटी एंड उसके नेक्स्ट होता है पायलट जो आप बैठे हैं और आपने बहुत सही बोला कि इज्जत भी मिलती है और जो आप स्किल्स लर्न करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको एक आप जॉब पे जाते हैं तो ऐसे आपको लगता है कि हाँ लॉट्स ऑफ लाइव्स डिपेंड ऑन मी तो मुझे फिट भी रहना है मुझे थिंक भी करना है मुझे प्लान भी करना है और पायलट ऐसी जॉब है जो आपका मैनेजर आपको नहीं बोलेगा कि आपने क्या नहीं किया बिल्कुल आप इंडिपेंडेंटली आप उस एयरक्राफ्ट में जा रहे हो और सबके बिहाफ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि आप सेल्फ डिटर्मिन भी हो लेकिन बड़ी बात मुझे बहुत अच्छा लगा देखो उन्होंने कहा कि बड़ी हाई स्टैंडर्ड के अंदर दी ट्रेनिंग होती है क्योंकि एयरक्राफ्ट की किसी भी तरह की एमरजेंसी हो सकती है अगर ट्विन इंजन है एक इंजन फेल हो सकता है दोनों फेल हो सकते हैं चार है तो दो फेल हो सकते हैं यू नो यू गॉट टू कोप विद दैट सिचुएशन और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो पायलट कमर्शियली फ्लाई करता है या प्राइवेटली फ्लाई करता है एवरी 6 मंथ्स उसको सिमुलेटर में जाना पड़ता है और 2 दिन के लिए असेसमेंट पे असेसमेंट देने सकते हैं उसकी आपकी कॉम्पिटेंसीज चेक होती है आपको कोई भी टाइप का फेलियर देते हैं वो सिमुलेटर में तो आपको साथ में रह के कैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हो कैसे वर्कलोड मैनेजमेंट करते हो वो सब आपकी स्किल्स आपको थ्रू आउट योर करियर रखनी पड़ती है कॉम्पिटेंट लेवल पे मैं दसदा जावां जरा सिमुलेटर हुंदा ना ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ आई कैन अंडरस्टैंड मैं वादा करदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਾਦਾ ਲੈਣਾ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਲਿਟਲ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਆਮ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਲਾਈਕ ਥਿੰਗਸ ਔਨ ਦ ਸਪੂਨ ਜਿਹਦਾ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਯੂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜੌਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਨ ਦੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ 747 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯੂ ਡੂ A320 A320 ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣੇ इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यार एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती जब भी आप इतना बड़ा एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हो हाँ यार सच अ बिग ह्यूज मशीन अभी पहले मैं दिखा रहा हूँ तो लेट्स हैव लुक दैट्स योर यूनिफॉर्म देखो वो वाला Oh yes. क्या स्मार्ट लग रहा है देखो दिस इज द व्हाट एयरक्राफ्ट इज दिस This is an Airbus A321. So अच्छा I'm- Airbus 320 हाँ, है So I'm part of. ओ अच्छा A321 में हाँ, लिखा भी है तो जब आप A320 के पायलट होते हो आपको A319, 320 और ये वाला 321 कौन सा है ये 320 है 320 हाँ. है इसकी क्या हाँ अच्छा मैं तुम्हें दिखा दवा यह है फैंसी ड्रेस की यूनिफॉर्म नहीं पाई दीप ने ही इज एक्चुअली अ पायलट यू कैन सी हिम सिटिंग इन द प्लेन रात टाइम का सफ़र हैगा जो फ्लाइट प्लेन करते फ्लाई करते सी लुक एट दैट हाउ ब्यूटीफुल सीन दैट इज इट्स ब्रेथ ओ माय गॉड That is London. दिस इज वंडरफुल दिस इज वंडरफुल That is London at night. Thank you. Yeah. यू नो ऑनेस्टली तुसी देखो ना मेरे इन्होंने तो गैस कर लिया कि मेरा पैशन ऑनेस्टली कई दफ़ा जिंदगी बंदे अद्धा निकल जाती है मैं नहीं चाहता किसी की हर दी किसी की जिंदगी अद्धा निकले यू नो जो तुसी जिंदगी अपनी लीड कर दो ना when you look back oh my god मेरे लाइफ किथे गई it's like that Exactly. You have to like a achieve flash what you want. just goes Yeah. every दिन every minute miss ना करो this is, seems to be hard work of course it's hard work but the passion goes with it Yeah, if you do hard work for maybe 2 years, आपका 2 साल का hard work will probably reward you for the next 20 years. 20 years. So that people have to look at it like that. Say, हाँ अभी hard work है, but अगले 20-30 साल I won't regret it, or it'll be a fruitful adventure. जैसे मैंने बोला हम नाम नहीं लिया था ये कई एयरलाइंस के पर्क होते हैं आपको फ्लाइंग देते हैं आफ्टर यू रिटायर थोड़ा बहुत बोलोगे उसके बारे में हाँ तो फॉर एग्जांपल पेंशन अच्छा होता है और अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ इयर्स एयरलाइन में काम करते हो तो आपको डिस्काउंटेड टिकट्स मिलते हैं आपके फैमिली के लिए मिलते हैं आपके फ्रेंड्स के लिए मिलते हैं डिफरेंट एयरलाइंस की डिफरेंट प्रोसीजर्स होती है पर बिल्कुल। पर्क्स बहुत अच्छे हैं मतलब आप अगर
कौन आपको थोड़े से पैसे में दुनिया बताएगा. That's how I look at it. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, अभी you got the 3 stripes. Yeah. This is for the pilot. Yeah, so I'm a first officer. First officer, हाँ, हाँ. and then the left-hand side is the captain. So I sit on the right-hand side in the cockpit, and the captain sits on the left-hand side. शादी में जब ये लड़का इधर बैठता तो लगता That's funny, है. So for you to when you become a captain, you get another bar. Yeah, we get 4 bars as 4 a bars. captain. Yeah, captain is 4 bars, and usually it depends airline to airline on how the progress is. कुछ airline में maybe आप 4-5 years में captain बन सकते हो, कुछ airlines में आपको 10-15 साल लगते हैं. तो depends on आप कहाँ काम कर रहे हो. और कैप्टन जब आप बनते हो तब आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, जैसे आप ओवरऑल कमांड के सिचुएशन में हो. और थ्रू आउट द पायलट करियर, जैसे मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ तो मुझे ट्रेनिंग दी जाती है कि मैं कमांड डेवलपमेंट कैसे करूँ. तो यू कॉन्स्टेंटली लर्निंग इन दिस करियर. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट. हाँ, लेकिन एक बात है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ टाइम जब ये आपको ऑफर देता है कि तुम टेक ऑफ करो वन सेक्टर, मैं वापस लेके आऊँगा, यू आर वेरी मच डूइंग द ड्यूटीज ऑफ अ कैप्टन. मीनिंग टू से, कुड यू से दैट अगेन? मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कैप्टन की आप कैरी आउट करते हो ना. हाँ, एग्जैक्टली, ऑन बिहाफ. ऑन हिज बिहाफ. Exactly, उसने yes. आपको कमांड दे दिया. हाँ, पर उसकी ओवरऑल कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, पर वो आपको ट्रस्ट कर रहा है कि आप सेकंड इन कमांड हो. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एयरक्राफ्ट सेफली हैंडल करो जैसे आपको ट्रेनिंग दी गई हो. तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तब आपको सब रेगुलेशंस, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. आप ऐसे ही मतलब ऐसे कि हाँ चलो चला लेते हैं, ऐसे एटीट्यूड नहीं चलता. देखो, वेरी वेरी, मेरा कोई दोस्त है, ही इज अ रिटायर्ड पायलट. ओह या. एंड वो इतना पर्टिकुलर है ना, गाड़ी कैसे पार्क करता है, 1 इंच पीछे 1 इंच आगे है, उतर के देखेगा, ये करेगा वो करेगा. वो उसको आदत एरोप्लेन से पड़ी, बिकॉज देयर इज अ जीरो टॉलरेंस सेफ्टी की. एब्सोल्युटली. है, जीरो टॉलरेंस होते हुए एविएशन तो उसको आदत ही पड़ गई है. हाँ, एविएशन इज वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. सेफ्टी मतलब हम में एम्बेडेड है कि हम जो भी करें डिसीजन सेफ होना चाहिए. सेफ्टी कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स इन एविएशन. क्योंकि एक क्रैश हुआ तो लाइव्स भी जा सकती है, मनी भी बहुत होता है, एयरलाइन की रेपुटेशन भी जा सकती है. तो एज अ पायलट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कोई भी डिसीजन लो, सेफ्टी को कंसिडर करके ही लेना है. बिल्कुल, उसके बिना वी कांट प्रोसीड. एज सिंपल एज दैट. और प्रोसीजर्स बहुत सारी होती है, क्योंकि जैसे बड़ी एयरलाइंस में थाउजेंड्स ऑफ पायलट्स होते हैं और आप एक बंदे के साथ हमेशा नहीं काम करते, आप दूसरों के साथ एवरी डे इज अ डिफरेंट पर्सन. रोस्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना, किसके साथ हो रहा है. कैबिन क्रू चेंज होता है तो पायलट कैप्टन चेंज होते हैं एक दूसरे के साथ. तो आपको दोनों को साथ मिलके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ही काम करना है. तो ही वो इंटेग्रिटी और वही वो बॉन्ड रहेगा, वरना सब दूसरों की एक दूसरे की चीज़ें करेंगे तो एयरक्राफ्ट सेफ नहीं रहेगा. आपको रास्ते में जब ये रास्ता, मेरे कहने का मतलब जब से आपने डिसाइड किया था, जब तक पायलट बने हो, कोई ऐसा टाइम आया था आपको लगा यार मैंने क्या किया, मुझको मेरे से नहीं होगा? डिड यू एवर फील दैट? ऐसे फीलिंग ऑब्वियसली आती है, सबको आती है. मुझे आई थी जब मैं ATPL थियरी कर रहा था. 14 एग्जामिनेशन थी, बहुत सारा वर्कलोड था, 6 महीने में बहुत सारी एग्जाम्स करे. मैंने बोला ये सब क्या है. पर ऐसे उस टाइम पे ये होता है कि आप देखते हो कि एंड पिक्चर क्या है, ये करके मुझे क्या मिलेगा. तो मैं बस वही पिक्चर देखता रहा. उस तरीके से आपका एड्रेनलिन आ जाता है कि हाँ ये मुझे करना ही है और नेक्स्ट स्टेप पे जाना ही है. तो इट्स दैट एड्रेनलिन यू गेट आफ्टर यू सी अ हर्डल, बट देन यू हैव टू लुक एट द एंड पिक्चर एंड दैट हेल्प्स यू थ्रू. अच्छा, हम वो पिक्चर देखने लग रहे, मेरी बात बीच में रह गई. A320, A321 इतना ह्यूज प्लेन तुम फ्लाई करते हो, इट्स अ मैसिव थिंग. तो यू नो टेप करके लैंड करते हो, जब भी तुम उसके बाद फ्लाइट खत्म करके वापस आते हो, छोटी गाड़ी में बैठते हो, तो कैसे फील, डू यू फील ऑकवर्ड? इट फील्स अ लिटिल ऑकवर्ड, क्योंकि एयरक्राफ्ट में हम डायरेक्शन कंट्रोल रडर पैडल से करते हैं. तो आप ऊपर बैठे होते हैं ना बहुत. और हाइट भी बहुत होती है. और हमारे थ्रस्ट लीवर्स, इससे पावर होता है, यहाँ पे गियर बदलना पड़ता है. तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू द माइंडसेट दैट ओके दिस इज अ कार. आपको कभी फील हुआ जब भी गाड़ी में बैठते हो कि मैं प्लेन में बैठा हूँ? आपको एक चीज़ बताओ, पायलट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, और ये रियल है क्योंकि बहुत सारे लोग कर चुके हैं मेरे फ्रेंड्स. हम रनवे पे सेंट्रल लाइन में चलाते हैं और रोड पे आपको सेंट्रल लाइन के बीच में चलाना पड़ता है. तो लॉट्स ऑफ पायलट्स हैव अ टेंडेंसी टू ड्राइव इन द मिडिल टू नो दैट दे आर ड्राइविंग ऑन द रनवे. रियली? या, सो इट्स समथिंग व्हिच वी हैव टू बी केयरफुल. बहुत सारी बातें, मुझे लगता है 1 घंटा हो रहा होता तो मेरी बातें नहीं खत्म होती, बिकॉज मेरा पैशन बहुत है इसके अंदर. अच्छा. एक मुझे बात बोलो, ये समथिंग मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज हम यू नो फ्रेंड्स बैठते हैं तो डिस्कस करते हैं. जब भी वो पाजी का सलाव से फोन आया था ना, तो बहुत लोग आर्गूमेंट करते हैं कि पायलट में तो कैप्टन में वो कहने की बात होती है, आदमी एक ही होते हैं.
लेकिन नहीं, वो तो कैप्टन हुआ तो वो तो फर्स्ट ऑफिसर हुआ, हाँ। कमांड का फ़र्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ़र्क है, तो वो तो क्लियर हो गया, यू नो। तो दूसरी बात अभी जैसे कैसी बात कर रहा था मैं, यू नो, अभी हर फ्लाइट के अंदर आप बैठते हो पायलट के साथ, अभी 2 मिनट ही रह गए, बड़ी फास्ट जा रहा है टाइम। अच्छा। तो आपको कभी ऐसे मौका हुआ कि कोई कैप्टन होगा को आपको बहुत वो ज़रा सड़े जैसे होगा, तो अच्छी तरह से बात नहीं, आपको इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आया कि मुझे इस तरह ट्रीट करता, कभी ऐसा होता है? थैंकफुली एविएशन में पहले बहुत था, पर अभी नहीं है। और अभी एक्सपेक्टेड होता है कि 2 बंदे डिफरेंटली काम कर रहे हैं, तो आपको भी आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, वो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। पर अगर ऐसे बंदा कोई आ गया तो आपको ये नहीं भूलना है कि आपके वैल्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और अगर आप आपके सेल्फ को प्रेजेंट करोगे तो आप किसी से भी डील कर सकते हो। एक सवाल और, हाँ। मेरे दिमाग में घूम गया था, मैंने को दूसरा सवाल पूछ लिया। जब भी बड़े हाई फ्लाई जॉब होते हैं लाइक दिस वन, Yeah. इट्स वन ऑफ द टॉप जॉब्स, मेरी पैशन है। जब भी इंसान रिटायर हो जाता है ना, एज की वजह से उसको रिटायर होना पड़ा, बट मेंटली फिजिकली इज नॉट रेडी टू रिटायर। या तो वो लोग जब भी नीचे आ जाते हैं, नीचे इन द सेंस कि अभी ज़मीन पे आ गए, हाँ, हाँ। तो यू नो लॉट ऑफ पीपल गो इनटू डिप्रेशन थिंकिंग कि Yes. मैं क्या हो गया, मेरा हाँ। जिंदगी, यू नो। ट्रू। हाउ उसका डू यू कोप विद दैट? Sir- अभी तो तेरा बहुत टाइम पड़ा है। हाँ अभी तो है थोड़े साल थैंकफुली। पर ऐसे भी नहीं है कि फ्लाइंग ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगा। ग्राउंड इंस्ट्रक्टर्स के रोल है, आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आप सिमुलेटर इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। तो आपने जो 30-40 ईयर्स में जो नॉलेज डेवलप किया है वो आप दूसरों को पास कर सकते हो। तो आप फ्लाइंग से ऑलवेज कनेक्टेड रह सकते हो अगर आपको रहना है तो। कैन यू जॉइन अ प्राइवेट जेट, कोई प्राइवेट एयरलाइन, कोई यू नो बिजनेस क्लास जो होते हैं? समटाइम्स मेनी स्कूल्स लाइक फ्लाइट स्कूल्स फॉर एग्जांपल आपको इनवाइट करेगी कि हाँ आप रिटायर्ड पायलट हो, आपके पास इतने सारे आवर्स है, अगर आपको इंस्ट्रक्टर आके बनना है, स्टूडेंट्स को सिखाना है, तो स्टूडेंट को भी बेनिफिट होता है कि मैं एक 40 साल से जो इंडस्ट्री में रहा है उनसे सीख रहा उससे हूँ, और सीख पायलट को भी उसका पैशन, उसका नॉलेज पास ऑन करने में मजा आता है। विद इन हाफ अ मिनट और मिनट क्या मैसेज देना चाहोगे क्विकली? सो आई वुड से इफ़ यू हैव अ ड्रीम, प्लीज़ 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 उसको फॉलो करो। हर्डल्स आएंगे, पर अगर आपका एंड पिक्चर जो आपको देखना चाहते हो वो आप अचीव करके ही रहोगे। तो नेवर स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम ड्रीमिंग, एंड इट डजंट हैव टू बी एनीथिंग, छोटा ड्रीम बड़ा ड्रीम जो भी हो, ड्रीम है उसको कंप्लीट करो और मज़े से करो। दीप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई रियली अप्रिशिएट। अभी मुझे वादा करो जाने से पहले हम वापस कभी आओगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट इट, Yes. देयर लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज पहला शो होता है, कितने लोगों ने मिस कर दिया। हाँ। तो मैं कोशिश करूंगा हम पहले बोलेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम कभी आगे, ताकि लोगों को पता लगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस पे मुलाकात होगी, तब तक रब रखा, सच करें। थैंक्स सर। सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच।